हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमगुरु एकेडमी में। तो आज अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नेम है सोयल रिएक्शन। क्या नेम है बच्चों? ध्यान, सोयल रिएक्शन। और अगर नंबरों की बात करें तो इस चैप्टर में से 3 नंबर का, अकॉर्डिंग टू जो अपने ब्लू प्रिंट है उसके हिसाब से 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर सोयल रिएक्शन की, तो सोयल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज सोयल रिएक्शन? तो सोयल रिएक्शन देखना क्या होती है। रिएक्शन बिटवीन H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन is known as soil reaction. Reaction between H plus ion and OH minus ion is known as soil reaction, and it decides if the soil is acidic or basic. If the soil is acidic or basic in nature. So what is soil reaction? The reaction between hydrogen ion and hydroxide ion is known as soil reaction, or and this reaction decides the soil, if the soil is acidic or the basic nature. So next come the type of ions, I mean which type of ion are of acidic nature and which ions are of basic nature. So first of all we talk about acidic nature ions. Acidic nature ions are like H plus, obviously. Next is NO3 minus 1, SO4 minus 2, and we can also count like CO3 minus 2. It is also of acidic nature. And when we talk about basic ions, these are like OH minus ion first of all. Next is Ca plus 2. After that is Mg plus 2, Na plus, and K plus. Basically, except OH minus, all cations are of basic nature, and except H plus, all anions are of acidic nature. Next, the topic which comes to our way is ionic product of water. Ionic product of water, and it is denoted by Kw. इसे डिनोट करते हैं इसको Kw से, ठीक है। अब क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट? व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट? द आयनिक प्रोडक्ट Kw इज रिटन एज H प्लस इंटू OH माइनस। सो आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन. Product of hydrogen ion concentration and hydroxide ion concentration is known as ionic product of water. It is denoted by Kw. And keep in mind that concentration of hydrogen ion or hydroxide ion in distilled water at 298 Kelvin is 1 into 10 to the power minus 7 gram ions per liter. So what will be the value of Kw? That will be like 1 into 10 to the power minus 7, ये हो गया H प्लस का, इंटू 1 into 10 to the power minus 7, ये है क्या OH माइनस का। तो वैल्यू ऑफ Kw क्या आ गई देखना, 1 into 10 to the power minus 14, 1 into 10 to the power minus 14. That is the value of Kw, or we can say of ionic product of water. And if we talk about unit, that will be like gram ion per liter. So that is the value of Kw. So keep in mind, we should always
रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ KW मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ water. What is the value of KW? That is 1 into 10 to the power minus 14 gram iron per liter. That is the value of KW. It is very crucial. Next comes the important concept of pH. You already have read about it in class 10th. That is, in simpler words, means power of hydrogen ion. As simple as that. Or power, we know that P word come from Latin word means potens, okay, which means strength or power. So the concept of pH was given by S.P.L. Sorensen. Concept of pH was given by S.P.L. Sorensen. Keep in mind that concept of pH was given by S.P.L. Sorensen. Next comes the formula of pH, that is pH equals to minus log of H plus, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 1 upon H प्लस। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अच्छा इसके बाद में आती है पीएच की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, negative log of hydrogen ion concentration is known as pH. डेफिनेशन क्या लिखेंगे pH की, ध्यान से देखना, that नेगेटिव, ये नेगेटिव है, log of hydrogen ion concentration is known as pH. Similarly, there is also a formula for POH. So POH will be like minus log OH माइनस, ये फॉर्मूला हो गया पीओएच का। और पीओएच की भी डेफिनेशन क्या होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीओएच। नेक्स्ट कम्स रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो क्या होगा ये, pH प्लस POH इक्वल टू 14। हमेशा ध्यान रखना कि pH और POH का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये भी एक, इसमें ध्यान देना कि ये जो रिलेशन है pH और POH का, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसमें से देखो तीन चीज़ें आ गई अपने पास, एक तो KW वाला हो गया, एक KW का फॉर्मूला, एक KW की वैल्यू। नेक्स्ट इसमें हो गया पीएच का फॉर्मूला, तो ये हो गया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देना इसमें कि ये जो पीएच का फॉर्मूला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो इनमें से चाहे कोई भी लिख देना, चाहे तो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस लिख देना, या पीएच इक्वल्स टू log 1 बाई एच प्लस लिख देना, एक ही बात है। नेक्स्ट इसमें ये पीएच और पीओएच में रिलेशन हो गया। नेक्स्ट इसमें कुछ एक न्यूमेरिकल आते हैं इस पे बेस्ड, जैसे कि अपने क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ अ सॉइल हैज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू लेट्स से 0.001 n और m, देन व्हाट इज द पीएच बतानी है अपने को। तो बहुत सिंपल है ये, देखो पीएच का फॉर्मूला लिखना है आपको, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस लिख लिया, उसके बाद में माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.001 लिख दी। अब ये देखो पॉइंट के बाद में डिजिट कितने हैं, 1 2 और 1 को मिलाकर 3, तो पीएच आपकी आ जाएगी 3। इतना करना है आपको, इतना ही करना है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर
को हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, पीएच बताओ, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, पॉइंट के बाद में डिजिट काउंट करो, वो पीएच हो गई। इसी तरह अगर मान लो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपको 0.0001 दे दी, तो पीएच क्या होगी, तो पीएच सिंपल है, पहले तो इस तरह से फॉर्मूला लगाओगे, तो पीएच तो आपको ये देखते ही पता लग जाना चाहिए पीएच कितनी आई। देखो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो पीएच क्या होगी 4, बस इतना ही है, पीएच कितनी होगी 4। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कहाँ पर आता है, जब आपको सोयल के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ना देकर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दे दी जाती है, जिससे कि हो गई आपकी 0.01, ये कंसंट्रेशन दे दी आपको इसकी हाइड्रोक्साइड आयन की। अब पीएच वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि पीएच वाले फॉर्मूला में तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी दे रखी है, OH माइनस आयन की। यहाँ पर अपने फॉर्मूला लगाएंगे POH वाला, तो POH का फॉर्मूला क्या था, POH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH माइनस, तो क्या हो गया माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी है 0.01। अब करना इसमें भी यही है, लेकिन पहले पीएच आ रहा था, अभी क्या आएगा POH, क्योंकि इस कंसंट्रेशन भी किसकी ले रहे हैं, POH की। तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2, तो POH का मान कितना हो गया 2। लेकिन ध्यान दो उसने POH नहीं पूछा आपसे, और वो पूछेगा भी नहीं, पूछेगा क्या आपसे pH। तो देखो इसके लिए अपने अभी अभी ये रिलेशन किया था pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, तो इसमें वैल्यू रख देंगे अपने। तो अपने को पता है कि pH प्लस POH बराबर कितना है 14 है, तो pH कितना ही आएगी, देखो pH POH का मान कितना है 2 बराबर 14, इसका मतलब pH कितना आ गया 12। तो इसमें ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, उसका आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके अंदर अपने आता है, देखो कौन सा, जब पीएच और पीओएच का हो जाता है, तो एक और बात इसमें ध्यान देना कि ये जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल जो होता है ये नॉन लीनियर स्केल है। क्या है, नॉन लीनियर स्केल होता है। नॉन लीनियर स्केल कौन सा होता है, देखना बच्चों, कि जैसे मान लो मेरे पास स्केल है कोई इस तरह से। अब लीनियर स्केल में क्या होगा कि जो लाइंस आएंगी, देखना ध्यान से, जो लाइंस आती है उसका अगर ग्राफ बनाते हैं अपने, तो वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है, देखो कैसे, ये इस तरह से, ये इस तरह से अगर ग्राफ बनाए ना अपने दोनों में, तो ये इस तरह से आती है, देखो कैसे, ये वाला हो गया। तो लीनियर स्केल में क्या होता है, देखना कि अगर कि यहाँ पर अपने मान लेते हैं H प्लस की कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर जो है वो पीएच है। तो लीनियर स्केल में क्या होता है कि अगर H का मान 1 बढ़ेगा तो पीएच का भी 1 बढ़ेगा, अगर H का मान 2 बढ़ता है तो पीएच का भी कितना बढ़ता है 2, अगर इसका मान 3 बढ़ता है तो इसका भी मान कितना बढ़ता है। लेकिन वास्तव में ये जो पीएच स्केल होता है ये लीनियर स्केल नहीं होता। इसलिए क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पीएच स्केल लीनियर स्केल होता है, नहीं होता। ध्यान देना, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब 10 गुना बढ़ती है, कितने गुना, 10 गुना बढ़ती है, या 10 बढ़ती है 10 गुना, तो पीएच का मान जो है वो 1 से वृद्धि करता है, 1 से बढ़ता है, यानी बढ़ता है, यानी इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि जो 10 टाइम्स इंक्रीज होती है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तब जाकर पीएच जो है वो 1 की इंक्रीज होती है। जैसे मान लो कि पीएच 6 थी, अगर पीएच को अपने 6 से 7 लेकर जाना है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में 10 टाइम्स जो है वो चेंज होगा, तब जाकर पीएच जो है वो चेंज होगी। जैसे मान लो पीएच 3 से 2 करनी है, तो पीएच 3 से 2 करनी है, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में 10 टाइम्स का जब डिफरेंस आएगा, तब जाकर पीएच की वैल्यू 1 से क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, कई बार इसमें जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल का डायग्राम बनाओ, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। ये हो गया इस तरह से, सिंपल है, वैसे इसमें खास है नहीं। लाइन की थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं अपने, और इसका कलर ये हो गया मान लो। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, सिंपली इधर रखना है 0, इधर रखना है 14, और बीच में रख देना 7, ये अमलिया हो गया।
एसिडिक, ये तो क्या हो गया एसिडिक, ये क्या हो गया बेसिक, और ये क्या हो गया न्यूट्रल, और बीच में नंबरिंग शो कर देना जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14 हो, ठीक है। तो इस तरह से पीएच स्केल आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर आता है नेचर ऑफ मिसेल। क्या आता है नेचर ऑफ मिसेल, ठीक है। अभी होता क्या है वो देखो भाई, नेचर ऑफ मिसेल जो अपने को पीएच को अफेक्ट करती है, पीएच इज अफेक्टेड। अब देखना अपने पिछली क्लासों में किया था, एक पॉइंट किया था परसेंटेज बेस सेचुरेशन। क्या किया था परसेंटेज बेस सैचुरेशन एक पॉइंट किया था, जिसमें अपने ये बात की थी परसेंटेज बेस सैचुरेशन अपने को बताता है कि उस पर्टिकुलर सॉइल में जो बेसिक नेचर के जो केटाइंस है वो टोटल केटाइन में से कितने परसेंटेज है। और अपने ये भी पढ़ी थी कि जब परसेंटेज बेस सैचुरेशन इंक्रीज होता है तो पीएच क्या होगी इंक्रीज होगी, नो डाउट, क्योंकि बेसिक नेचर की अगर आयंस बढ़ रहे हैं तो पीएच भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि नेचर ऑफ मिसेल जो होती है वो भी पीएच को अफेक्ट करती है। अब परसेंटेज ऑफ जो नेचर ऑफ मिसेल है वो क्या कहता है कि अगर परसेंटेज बेस सैचुरेशन सेम है, परसेंटेज बेस सैचुरेशन क्या है सेम है, फिर भी पीएच जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। क्या हो सकती है डिफरेंट हो सकती है। ये इस पीएच की जो वैल्यू है ये इस बात पर निर्भर करेगी या इस पर डिपेंड करेगी कि जो मिसे जो पर्टिकुलर वो सोइल है उसके अंदर कौन से टाइप की क्ले है, कौन से टाइप का मिनरल है, और वो हाइड्रोजन के प्रति उसकी टेनेसिटीज होती है या उसको होल्ड करने की या उसको रिलीज करने की उसकी टेंडेंसी कैसी है, उसी के बेसिस पे अपने जो पीएच होती है वो डिक्टेट होती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें अगर अपने पास एक ह्यूमस है, क्या है एक अपने पास क्या है ह्यूमस, एक हो गया सिलिकेट क्ले, क्या हो गया सिलिकेट क्ले, और तीसरा हो गया आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखना अगर परसेंटेज बेस सैचुरेशन सेम भी है ना तो सबसे ज़्यादा जो पीएच रहेगा ध्यान देना किसका होगा आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। किसका होगा आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज ही नहीं करते, रिलीज ही नहीं करेंगे तो पीएच भी क्या रहेगी कम। उससे कम किसका होगा सिलिकेट क्ले का, और उससे कम किसका होगा ह्यूमस का, क्योंकि ह्यूमस आयन जो होते हैं वो बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं, इसलिए ह्यूमस की पीएच कम हो जाएगी, सिलिकेट क्ले की पीएच ह्यूमस से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन थोड़ा मुश्किल से रिलीज करते हैं, थोड़ा हार्ड रिलीज करते हैं, किससे ह्यूमस से। और सबसे अगर अपने बात करें हार्ड साइड में तो ये कौन सा आएगा आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है नेचर ऑफ मिसेल में। नेचर ऑफ मिसेल में क्या लिखना है कि नेचर ऑफ मिसेल डिसाइड्स द पीएच ऑफ द सॉइल if we have percentage base saturation same for different soil colloids then pH could also be different, or we can say that if the percentage base saturation for 2 or 3 different colloids is same, परसेंटेज बेस सैचुरेशन क्या है सेम, फिर भी उनकी पीएच क्या हो सकती है डिफरेंट हो सकती है। सो ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ मिसेल पर कमेंट करो, कमेंट ऑन नेचर ऑफ मिसेल, तो ध्यान रखना कि इसमें क्या लिखना है कि अगर 2 या 3 अपने पास सिलिकेट क्ले हैं या क्ले मिनरल्स हैं और उनकी परसेंटेज बेस सैचुरेशन अगर सेम भी है तो भी पीएच क्या हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमस, क्योंकि पीएच इस बात पर डिपेंड करेगी कि कौन सा क्ले सिलिकेट या क्ले मिनरल जो है वो ह्यूमस आयन जो है वो जल्दी ह्यूमस हो गया या सिलिकेट क्ले होगी वो उनमें से कौन सा ऐसा है जो H प्लस आयन को जल्दी रिलीज करेगा। तो जो H प्लस आयन को जल्दी रिलीज करेगा और ज़्यादा रिलीज करेगा उसकी पीएच क्या होगी कम होगी, इसीलिए ह्यूमस की पीएच क्या होती है लेस, उससे ज़्यादा कौन किसकी होती है सिलिकेट क्ले की, उस सबसे ज़्यादा किसकी होती है आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये होती है नेचर ऑफ मिसेल। नेचर ऑफ मिसेल में बेसिकली क्या होता है कि
नेचर ऑफ मिशेल अपने को ये बताती है कि पीएच होती है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो सकती है। अगर परसेंटेज बेस सैचुरेशन सेम भी है तो भी पीएच अलग अलग हो सकती है, क्योंकि पीएच जो है वो निर्भर करती है H प्लस आयनों, या अपने ये कह सकते हैं कि जो अपने OH माइनस आयन होता है उस पर डिपेंड करती है। अगर हाइड्रोजन आयन कोई कले जो है वो ज़्यादा रिलीज कर रही है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगी, अगर कोई कम रिलीज कर रहा है तो वो कम एसिडिक होती है। इसीलिए ध्यान रखना कि ह्यूमस जो होता है ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज करता है, इसलिए पीएच क्या होती है सबसे कम। ये ध्यान रखना, ये जो अपने सीक्वेंस लिख रहे हैं ये वाला, ये पीएच का सीक्वेंस है। ध्यान रखना ये इसका सीक्वेंस है पीएच का, ठीक है। पीएच जो है ह्यूमस की सबसे कम, उससे ज़्यादा सिलिकेट के लिए, एंड नेक्स्ट आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की होती है। दूसरा इसमें आता है टाइप ऑफ एब्जॉर्ब्ड कैटायंस, टाइप ऑफ एब्जॉर्ब्ड कैटायंस, एब्जॉर्ब्ड कैटायंस। एब्जॉर्ब्ड कैटायंस होते हैं वो किस तरह से पीएच को अफेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, अगर ये चार कैटायंस एब्जॉर्ब हो रखे हैं तो ये सोयल को बनाते हैं बेसिक नेचर का। और इसमें भी ध्यान रखा, अगर सोडियम ज़्यादा है, सोडियम क्या है ज़्यादा, तो पीएच भी क्या होगी ज़्यादा। इफ सोडियम इज हाई देन पीएच विल आल्सो बी हाई, एंड इफ concentration ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड एल्यूमिनियम आयन इज हाई देन पीएच विल बी लो, क्योंकि ये जो दो होते हैं ये किस नेचर के रहते हैं, आयंस होते हैं एसिडिक नेचर के, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं अपने भी ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पीएच को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी पीएच। नेक्स्ट आते हैं अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग दी पीएच, अफेक्टिंग दी पीएच, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी पीएच। देखो भाई कौन कौन से आते हैं इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग दी पीएच के अंतर्गत। तो फैक्टर्स जो पीएच को अफेक्ट करते हैं उसमें कई सारे हैं, जिसमें अपने यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे ये हो गया, इस तरह से एक अपना फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो ये कुछ एक फैक्टर्स होंगे जो पीएच को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है अपने पेरेंट मटेरियल। फर्स्ट इज पेरेंट मटेरियल। ध्यान रखना, अगर पेरेंट मटेरियल एसिडिक तो सोयल एसिडिक, पेरेंट मटेरियल अगर बेसिक नेचर के होते हैं तो सोयल भी क्या होती है, बेसिक नेचर की। सेकंड आता है प्रेसिपिटेशन, क्या आता है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है बेसिकली कि सोडियम आयन हो गए या मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो वाटर जो होता है, रेन वाटर या कोई भी अदर वाटर सोर्स जो होता है उसके अंदर डिजोल्व होकर कहाँ चले जाते हैं, लोअर लेवल्स में, जिसके कारण जो अपर लेयर ऑफ सोयल होती है, यानी अपर लेयर जो ऑफ सोयल होती है उसके अंदर कौन कौन से आयन रह जाते हैं, हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन रह जाते हैं, जिसके कारण सोयल किस नेचर की हो जाती है, एसिडिक नेचर की। तो सीधा से ध्यान रखना, प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, सोइल एसिडिक नेचर की हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है अपने वो आता है, देखो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या आता है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, सीधा सा ध्यान रखना, सोइल होती है एसिडिक, सोइल किस नेचर की हो जाती है, एसिडिक नेचर की हो जाती है। किसके कारण, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के। ऐसा होता है क्यों है वो देख लो, कि जब डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का तो CO2 गैस निकलती है और ये वेपर के साथ या वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है, H2CO3, जो कि क्या होता है, एक एसिड होता है, जिसके कारण सोइल भी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करते हैं तो वो आता है अपने वेजिटेशन। क्या आता है,
वेजिटेशन। तो वेजिटेशन में ध्यान देना बच्चों कि सोइल एक तो होती है जो अपने ये बात करें कि फॉरेस्ट सॉइल्स होती है, फॉरेस्ट सॉइल, ये होती है अपने मोर एसिडिक। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है? मोर एसिडिक। फॉरेस्ट सॉइल मोर एसिडिक होती है, रीजन बीइंग कि इसमें जो होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर ज़्यादा होता है जिसके कारण एसिडिक हो जाती है। लेकिन वहीं अगर अपने बात करें जो ग्रास होती है वो क्या होती है? लेस एसिडिक, ध्यान रखना। और वहीं अगर अपने बात करें ना एक जो कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं, और नेक्स्ट इसमें आता है जो कॉनिफेरस जो प्लांट्स होते हैं, कॉनिफेरस प्लांट्स जो होते हैं, कॉनिफेरस प्लांट्स, और दूसरा हो गया अपने डेसिडस प्लांट्स जो होते हैं। डेसिडस प्लांट्स कौन से होते हैं? वाइड लीव वाले जो होते हैं। डेसिडस जो प्लांट्स होते हैं एक वो हो गए। तो इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस होता है पीएच वाइज। जो कॉनिफेरस होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? मोर एसिडिक। और ये इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं? लेस एसिडिक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब तक अपने क्या पढ़ा कि जो पेरेंट मटेरियल होते हैं उसमें अगर पेरेंट मटेरियल एसिडिक तो सोइल भी एसिडिक, पेरेंट मटेरियल अगर बेसिक नेचर की तो सोइल भी क्या होगी? बेसिक नेचर की। दूसरा इसके अंदर आता है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं और लोअर लेवल्स में चले जाते हैं, जिसके कारण अपर लेयर में सिर्फ कौन से रहते हैं? हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन, जिसके कारण सोइल क्या हो जाती है? एसिडिक, या ये कह सकते हैं पीएच क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो सीधा सा ध्यान रखना, और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से सोइल एसिडिक नेचर की हो जाती है। रीजन बीइंग कि जब डिकम्पोजिशन होता है तो CO2 बनता है, और CO2 वाटर के साथ जुड़कर क्या बना लेता है? H2CO3, जो कि क्या है? एसिड है, कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट आता है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन में ध्यान रखना कि जो फॉरेस्ट सॉइल होती है उसकी पीएच लेस होगी क्योंकि वो मोर एसिडिक नेचर की होती है, और ग्रास सॉइल जो होती है वो क्या होती है? लेस एसिडिक। वहीं अगर अपने बात करें, ये भी वेजिटेशन में है, कॉनिफेरस और डेसिडस वाले प्लांट्स जो होते हैं। कॉनिफेरस वो प्लांट्स होते हैं जो अपने ये कहें कि जो शार्प लीव्स होती हैं जिनकी, तो इसमें आएगा ये जो प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं, मोर एसिडिक, और जो डेसिडस प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं? लेस एसिडिक। नेक्स्ट इसके अंदर अपने देखते हैं, नेक्स्ट आता है इसमें देखना नेचर ऑफ क्रॉप। क्या आता है बच्चों? नेचर ऑफ क्रॉप। तो इसमें ध्यान देना नेचर ऑफ क्रॉप में कि जो ग्रास होती है वो पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, नो इफेक्ट ऑन पीएच। और जो लेंग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेंग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को क्या बनाते हैं? एसिडिक। ध्यान रखना, लेंग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल को क्या बनाते हैं? एसिडिक नेचर की। नेक्स्ट आता है इसमें डेप्थ ऑफ सॉइल। क्या आता है? डेप्थ ऑफ सॉइल। तो ध्यान रखना जब डेप्थ इंक्रीज होगी तो सॉइल की पीएच पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ध्यान रखना सॉइल की पीएच क्या होती है? कम होती है। और ये डिपेंड करता है एक्चुअल में भी अपने किस तरह के एरिया में बात करते हैं, कि ड्राई रीजन्स जो होते हैं, इन ड्राई रीजन्स, तो ड्राई रीजन्स में क्या होती है? जब डेप्थ इंक्रीज होती है तो पीएच क्या होती है? डिक्रीज होती है। ऐसा होता है क्योंकि ड्राई रीजन्स में वेपराइजेशन ज़्यादा होता है। ज़्यादा वेपराइजेशन से क्या होता है? कैल्शियम, सोडियम और आयंस होते हैं ये वाटर के साथ डिजोल्व होकर अपर लेयर पर आ जाते हैं। अपर लेयर पर आने के बाद वाटर जो होता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, और आयंस होते हैं वो ये वहीं पर रह जाते हैं। तो ऊपर जो होती है वो पीएच क्या होती है? ज़्यादा। जैसे जैसे नीचे जाते हैं इन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तो पीएच भी क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्या आता है? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अब देखो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सॉइल को क्या बनाते हैं? एसिडिक। ध्यान रखना ये कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं सॉइल को क्या बनाते हैं? एसिडिक इन नेचर। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, या अगर अपने बात करें डीएपी हो गया, ये सारे क्या बनाते हैं? सॉइल को एसिडिक बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें वाटर लॉगिंग। क्या आता है? वाटर लॉगिंग। अब एक बात समझना यहाँ पर कि वाटर लॉगिंग जो होता है उसके दोनों इफेक्ट होते हैं। वाटर लॉगिंग जो होती है उसके दोनों इफेक्ट होते हैं, यानी एसिडिक इफेक्ट भी होता है और बेसिक इफेक्ट भी होता है। ध्यान रखना कि जहाँ पर पीएच कम होती है वहाँ पर तो पीएच क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एसिडिक सॉइल्स में तो पीएच इंक्रीज हो जाएगी और जो बेसिक सॉइल्स होंगी उसमें पीएच क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखो एसिडिक सॉइल्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बाकी आयंस क्या चले जाते हैं नीचे। लेकिन जब वो पानी आता है तो वो जो नीचे वाले आयन होते हैं वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर सरफेस पर आने लगते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो बेसिक सॉइल या एल्कलाइन सॉइल जो होती है यहाँ पर क्या होता है, आयंस पहले से सॉइल के ऊपर सरफेस पर बैठे होते हैं। तो जब इनको पानी मिलता है तो ये वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं और थोड़े क्या चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ पीएच, या ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच। क्या आता है? सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, देखो कौन कौन से। ये हो गए अपने, पहला है फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए पीएच की क्या सिग्निफिकेंस है? दूसरा आता है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा इसके अंदर आता है फॉर प्लांट ग्रोथ या फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट आता है फॉर प्लांट डिजीज। फॉर प्लांट डिजीज। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर अगर अपनी बात करें तो वो आता है ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। और सबसे लास्ट में अपने कह सकते हैं ऑन ग्रास। भी ग्रास पर क्या क्या इफेक्ट या सिग्निफिकेंस इनके हो सकते हैं। तो ये कुछ एक सिग्निफिकेंस है, ये अलग अलग पॉइंट है। पहला भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स पर क्या इफेक्ट होता है, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीसरा प्लांट्स। एक तो हो गया प्लांट न्यूट्रिएंट्स और ये प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह पे। फिर आता है प्लांट डिजीज, फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, और लास्ट में आता है ग्रास। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने प्लांट न्यूट्रिएंट्स पे, तो देखो क्या इफेक्ट होता है प्लांट न्यूट्रिएंट। अब इसमें देखो अपने को लिखना क्या है कि पहले तो अपने लिखेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट्स पर पीएच का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। जैसे पीएच चेंज होती है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी क्या हो जाती है? चेंज होते हैं। ध्यान रखना जो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आयन जो होते हैं ये बेसिक नेचर के कैटायंस होते हैं और ये बेसिक सॉइल में ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं। और वहीं अगर अपनी बात करें हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन जो होते हैं ये एसिडिक नेचर के कैटायंस होते हैं। और ध्यान रखना जो एसिडिक सॉइल होती है उसके अंदर कौन कौन से कैटायन की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है? Fe, Mn एंड Al। अब क्या होगा कि अगर सॉइल एसिडिक नेचर की है तो एसिडिक नेचर की सॉइल में
FeMn और एल्यूमिनियम जो है वो डिजोल्व भी ज़्यादा होंगे। अगर ये डिजोल्व ज़्यादा हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है ये प्लांट जो इनको एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करेगा, और ये ऐसे एलिमेंट है जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सोइल अगर एसिडिक क्या होती है, आयन उसमें अंदर जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसके ऊपर उसके टॉक्सिक इफेक्ट दिखने लग जाएंगे। और वहीं अगर pH जो है वो 5.5 से कम हो जाती है, यानी इफ pH इज लेस देन 5.5, तो नाइट्रिफिकेशन जो होता है, नाइट्रिफिकेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन गेट्स स्लो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो क्या होता है भी, जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं वो अवेलेबल करवाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, एक्टिनोमाइसीटीज हो गई। तो एक्टिनोमाइसीटीज हो गई, फंगस वगैरह होगी, इनकी क्या होती है, फिक्स पीएच होती है कि ये केवल उसी पीएच पर ही वर्क करते हैं। जैसे ही पीएच चेंज होगी इनकी वर्किंग जो इफेक्ट होगी, जिसके कारण प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे एक्टिनोमाइसीटीज होता है, ये एक्टिनोमाइसीटीज होता है वो pH 4 से ज़्यादा अगर, तब तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन अगर pH लेस देन 4 होगी तो फिर इनकी एक्टिविटी कुछ खास नहीं रहती। इसी तरह जो नाइट्रोजन होता है, जो कि अपने कहें कि मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अपने ये कहें कि जो 4 से ज़्यादा pH होती है, यानी मोर देन 4 अगर pH है, उसी में अच्छे से प्रॉपरली अवेलेबल होंगे, अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं होंगे। और ज़्यादातर पौधों में ध्यान रखना कि जो पीएच प्रास रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, यानी पीएच रेंज जो रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, 6.5 टू 7.5 पीएच जो है वो रिक्वायर्ड होती है ज़्यादातर प्लांट्स में। 6.5 टू 7.5 पीएच होती है वो मेनली होनी चाहिए, जिस पर अपने कह सकते हैं कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं और मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। तो इसमें अपने लिखना यही है कि ये एसिडिक नेचर के हैं, ये बेसिक नेचर के हैं। एसिडिक नेचर में ये ज़्यादा डिजोल्व होंगे तो प्लांट्स को मिलेंगे भी ज़्यादा, जिसके कारण प्लांट में क्या होगा, इनके टॉक्सिक इफेक्ट दिखने को मिलेंगे। और पीएच अगर 5.5 से लेस चली जाती है तो नाइट्रिफिकेशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। उसके अलावा अपने इसमें देखेंगे कि पीएच जो होती है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करते हैं, या ये कह सकते हैं कि पीएच जो होती है प्लांट न्यूट्रिएंट को अफेक्ट करती है। अब अगर पीएच कम ज़्यादा हो रही है तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी उसके हिसाब से वेरी करते हैं। अब इसमें एक बात समझने वाली ये है कि जैसे ही पीएच चेंज होगी तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी उनकी रिएक्टिविटी चेंज होगी, जिसके कारण प्लांट न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो भाई क्या होते हैं ये इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एक बात ध्यान देना कि सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पीएच डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनकी एक स्पेसिफिक पीएच है जिस पर वो मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं। उससे कम या ज़्यादा अगर पीएच हो रही है तो उनकी रिएक्टिविटी सीवियरली अपने कह सकते हैं कि अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर पीएच जो है वो लेस देन 5.5 है तो इस पर क्या होगा, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज जो है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इसी तरह पीएच 5.5 या इससे कम पर जो होते हैं, जो फंगस होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें अपने को बस ज़्यादातर यही लिखना है कि कुछ से तो एक दो तो अपने को ये एक उदाहरण लिखने हैं भी, इससे कम पीएच पर बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे, इससे कम पीएच पर ये जो अपने कह सकते हैं कि जैसे फंगस वगैरह वो काम नहीं करेंगे। जैसे पीएच 0.5 से कम गई तो एक्टिनोमाइसीटीज तो बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे, लेकिन फंगस होते हैं या फंजाइज होती है वो इफेक्टिवली वर्क करती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने इफेक्ट ऑन प्लांट्स। भाई प्लांट्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो ध्यान रखना भाई अपने दो फैक्टर पड़े हैं, इन दोनों का मिक्स ही प्लांट है, क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे उसकी ग्रोथ नहीं होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसमें भी यही लिखना है कि पीएच जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है या बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। अगर पीएच जितनी उनको रिक्वायरमेंट है प्लांट को उतनी नहीं है या उस हिसाब से नहीं है तो पीएच प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाएगी। अगर जैसे मान लो एसिडिक नेचर ज़्यादा हुई, एसिडिक नेचर अगर ज़्यादा होगी तो उसमें FeMn और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो ज़्यादा डिजोल्व होंगे,
वो ज़्यादा अगर डिजोल्व हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है वो प्लांट को ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे और ज़्यादा एब्जॉर्ब होने से उनके टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसी तरह अगर OH माइनस आयन ज़्यादा होते हैं तो उससे क्या होता है, सोइल की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है। सोइल की स्ट्रक्चर खराब होने से क्या होता है, प्लांट की जो रूट्स होती है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगी। प्रॉपरली अगर ग्रो नहीं करेंगी तो क्या होगा, एक तो प्लांट्स के रूट्स जो है वो कम होंगे, प्लांट के रूट्स क्या होंगे, कम होंगे, और एक वो क्या होंगे, थिन होंगी थोड़ी, ठीक है। और सेम एसिडिक में भी है कि एसिडिक सॉइल में अगर प्लांट ग्रो करता है तो उसकी जो रूट्स होती हैं तो एक तो उनके नंबर्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स डिक्रीजेज, और साथ में उनकी जो थिकनेस होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट अपने आता है इफेक्ट ऑन डिजीज। इफेक्ट ऑन प्लांट डिजीज, इफेक्ट ऑन प्लांट डिजीज। तो प्लांट डिजीज पर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं वो देख लो इसमें। तो इसमें यहाँ पर मैं कुछ एक नाम लिख रहा हूँ प्लांट डिजीज के, जो कि किस टाइप की सॉइल में होते हैं और किस टाइप की सॉइल में क्यों होते हैं। ध्यान रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, इन ये जो 3-4 पॉइंट किए हैं अपने इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर एक तरफ मैं लिख रहा हूँ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज, दूसरा यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉइल जिसमें ये होता है, और नेक्स्ट इसमें लिख रहे हैं अपने क्योर, ठीक है। तो इसमें देखना पहला आता है इसमें अपने फिंगर एंड टो रोग, फिंगर एंड टो डिजीज। तो ध्यान रखना इस टाइप का जो डिजीज होता है वो एसिडिक सॉइल में क्या होता है, ज़्यादा होता है। किस टाइप की सॉइल में ज़्यादा होता है, एसिडिक। इसका मतलब है अगर इसको बेसिक सॉइल या एल्कालाइन सॉइल में रखा जाए तो ये डिजीज अपने आप ही क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इसी तरह एक डिजीज आती है पोटैटो स्कैब, पोटैटो स्कैब। तो पोटैटो स्कैब जो होता है वो न्यूट्रल और जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें ज़्यादा होता है, न्यूट्रल एंड एल्कलाइन, न्यूट्रल एंड एल्कलाइन सॉइल में ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसको अगर एसिडिक सॉइल में अपने ग्रो कर रहे हैं तो ये डिजीज जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट आता है ग्रे फ्लैक। क्या होता है, ग्रे फ्लैक, ग्रे फ्लैक। अब ये वाली जो डिजीज है वो किस टाइप के सॉइल में ज़्यादा होती है, न्यूट्रल, इसमें ज़्यादा होती है न्यूट्रल में। तो इसका मतलब इसको अगर एसिडिक या एल्कलाइन में अगर ग्रो कर रहे हैं अपने एल्कलाइन सॉइल में तो ये डिजीज नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है टेकोल। कौन सा आता है, टेकोल। अब ये वाली जो डिजीज है वो एल्कलाइन सॉइल में ज़्यादा होती है। किस टाइप की सॉइल में ज़्यादा होती है, एल्कलाइन। इसका मतलब अगर एसिडिक सॉइल में रखा जाए या एसिडिक सॉइल में इस पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो किया जाए तो टेकोल डिजीज को क्योर किया जा सकता है विदाउट एनी पेस्टिसाइड और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये हो गया डिजीज पर इफेक्ट। तो इसमें ये ध्यान रखना कि फिंगर एंड टो डिजीज होती है वो एसिडिक में होती है और बेसिक में क्योर हो जाएगी। पोटैटो स्कैब जो होता है वो न्यूट्रल और अल्कलाइन में होता है लेकिन एसिडिक में क्या हो जाएगा, वो क्योर हो जाएगा। ग्रे फ्लैग जो है वो न्यूट्रल में होता है, इसका मतलब एसिडिक और अल्कलाइन में उसको क्योर किया जा सकता है। इसी तरह टेकोल डिजीज होती है वो अल्कलाइन सॉइल में होती है, मतलब एसिडिक सॉइल में वो क्या हो सकती है, सही हो सकती है। नेक्स्ट देखो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखो भाई।
तो ध्यान रखना एसिडिक सॉइल जो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई खासा चेंज नहीं होता, वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जो एसिडिक सॉइल, अब ऐसा नहीं है कि एसिडिक होती रहेगी तो होएगा नहीं, लेकिन एसिडिक सॉइल में स्ट्रक्चर खराब नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण वेंटिलेशन जो होता है वो भी क्या हो जाता है कम। और जो अपने अल्कलाइन सॉइल होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो सॉइल की स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब उससे दो दो नुकसान होते हैं कि एक तो लेस वेंटिलेशन, लेस वेंटिलेशन बोल दो या एरेशन बोल दो, एक ही बात है। वेंटिलेशन अगर लेस है तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके कारण उनकी ग्रोथ और उनकी रिएक्टिविटी दोनों हैम्पर होंगी। अगर ग्रोथ और रिएक्टिविटी हैम्पर हो रही है तो सिंपल सी बात है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी में भी हैम्पर होगी और प्लांट की ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने इफेक्ट ऑफ ग्रास, इफेक्ट ऑन ग्रास, इफेक्ट ऑन ग्रास। देखो भाई क्या इफेक्ट होता है ग्रास पे। तो ग्रास जो होती है, तो ग्रास जो होती है वो अपने कहें कि प्रोटेक्टेड फॉर एसिडिक या लेस अफेक्टेड बाय एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर यानी कि सोयल अगर एसिडिक है तो ग्रास पर कोई खासा इफेक्ट पड़ता नहीं। और यही रीज़न है कि जो ग्रासेस जो होती हैं वो एसिडिक सोयल में ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है क्रॉप्स को, ठीक है। और इसीलिए इनके लिए, क्योंकि ये एसिडिक नेचर में क्योंकि बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय होते नहीं है, तो अगर इनको डिस्ट्रॉय करना होता है तो ज़्यादा अपने को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। वहीं अगर अपने बात करें ना एल्कलाइन नेचर में यानी बेसिक नेचर में, तो बेसिक नेचर में ग्रास जो होती है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बफर सॉल्यूशन। क्या आता है बच्चों? बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशंस, solutions which can hold the pH or which resist the pH change, solutions which resist the pH change। या इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है when we add a little amount of acid or base in a solution and pH does not change, these are known as buffer solution। solutions which resist the pH change इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये पीएच चेंज को रजिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई मोर अमाउंट ऑफ, मोर क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच। और जिन सॉल्यूशंस में ऐसी कैपेसिटी होती है उसको क्या कहते हैं अपने? बफर सॉल्यूशन। और कोई बफर सॉल्यूशन किस लिमिट तक पीएच को होल्ड कर सकता है या पीएच को अनचेंज रख सकता है उसको क्या कहते हैं अपने? बफरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान देना, बफरिंग कैपेसिटी में आपको जो है वो बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल बता देता हूँ। एक तो हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कौन सा? देखो CH3COOH प्लस CH3COON। वही अगर अपने बात करें बेसिक बफर सॉल्यूशन की तो ये होगा जैसे NH4OH प्लस NH4C, ये हो गया बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द पीएच चेंज and for that reason we need more quantity of acid or base to change the pH, and the solutions which have these properties are known as buffer solution। next आता है buffer capacity। buffer capacity क्या होगी? the strength or power of any buffer solution to hold the pH or to resist the pH is known as buffering capacity। next is properties of buffering capacity। तो first is
they keep the pH unchanged. Obviously that's the definition of their. And second is, if we have more buffer solution in a soil, then pH will be unchanged for longer period of time. नेक्स्ट ध्यान रखना एक बात इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी किस पर होती है? मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी, बफरिंग कैपेसिटीज होती है किस पर होती है? 50% बेस सैचुरेशन पर। मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी किस पर होती है? 50% बेस सैचुरेशन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना कि मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी इज ऑन 50% बेस सैचुरेशन। नेक्स्ट इसमें आता है सिग्निफिकेंस ऑफ बफरिंग कैपेसिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ बफर्स और बफरिंग कैपेसिटी, बफर्स और buffering capacity. So mainly there are two significance mentioned in the book. First is obviously pH stabilization, and second one is required amount of melurants या amendments, required quantity of melurants or amendments, soil amendments, यानी कि किसी पर्टिकुलर सॉइल को अगर अपने को क्योर करना है, लेट्स से कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ अमेंडमेंट्स है, यानी जो उसमें अपने मिलाएंगे केमिकल्स, उनकी कितनी क्वांटिटी है। तो पहला तो ये हो गया पीएच स्टेबलाइजेशन का काम होता है। अगर जिस सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी या जितनी ज़्यादा रहेगी, उसमें पीएच स्टेबलाइजेशन उतना ही क्या होगा, बेटर होगा। तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगे, हल्के फुल्के चेंजेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिएक्टिविटी फैक्टर नहीं होगी। दूसरा इसमें ध्यान रखना, इफ बफरिंग कैपेसिटी इज हाई, बफरिंग capacity is high, then quantity of ameliorants or amendments will also be high. Quantity of ameliorants or amendments will also be high. So that's all in this chapter. I hope you liked it. If you liked it, hit that like button, and if you want to download PDF of this lesson, then you can join our Telegram channel. The link is given in the below, and consider subscribing our channel as we are going to upload all the lessons in this series. So this is for now. See you in the next class. Thank you.